Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraza and you are watching the Cherry Birds. So guys, today's video is going to be really very crucial for all the students who are much confused about the particular question, the critical appreciation of the poem. So that the student are confused that either they have to choose this particular question or not. So there was a suggestion for you guys, as Punjab University has introduced this question as an optional one but not compulsory. So don't be panic and just relax. Prepare this one also as an optional question, and I think you must leave your decision to the exams day. If you find that poem easy that day in order to take it as your fourth question, then write it. If you don't feel it easy or you feel it a bit difficult, so just leave it. So but if you are determined to take this question as compulsory one, so I'll definitely help you, and inshallah I'll elaborate all the words and all the terms in a very easiest manner, so you can take it as your fourth question. Like if you have chosen it as a compulsory one or you are determined to take it as your fourth question. So let's start guys. So guys, there are some techniques which you have to follow for this question. Using a mnemonic, objectives to learn a mnemonic to develop a strategy for approaching unseen poetry. क्योंकि आपको unseen poetry दी जाएगी, आपने उससे पहले शायद कभी सुना हो, लेकिन इस तरह आपने उसे elaborate नहीं किया होगा जिस तरह आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम्स में. तो to write a response to an unseen poem in exams conditions, कुछ निमोनिक मैं आपको समझा देती हूँ. जिस तरह कुछ हम किसी भी फ्रेज़ को जिस तरह की वर्डिंग में डिवाइड करते हैं कि आपको वन बाय वन उसकी समझ आती जाती है, जैसे मैं आपको अभी इलाबोरेट करती हूँ. व्हाट इज़ निमोनिक? अ निमोनिक इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड टू हेल्प मेंबर समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, आपको रिमेंबर करने में मदद देता है एक कॉम्प्लेक्स फ्रेज़ को या किसी ऐसे पूरे प्रोजेक्ट को जिसको आपको आसान बना देता है. निमोनिक जो है अ हिट पोइम. ठीक है, अ हिट पोइम, HITPOEM. We are going to use the phrase a hit poem to help us with the unseen poetry questions on exams. ठीक हो गया? What does it mean? अब जो स्टूडेंट हैं उनको होगा कन्फ्यूजन कि ये निमोनिक क्या है. What is this ridiculous word? So a hit poem is a mnemonic that can be used when writing about the unseen poetry on the exam. But what do you think it stands for? कि अब ये मतलब है क्या, ये चीज़ है क्या, ये कौन सी नई रॉकेट साइंस है. तो what does it means? A hit poem. A for about. ठीक है, आपको इस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल मैनर में चलना है और फिर आप उसको अपने गिवन पोइम को जो भी आपको दी गई है उसको बहुत अच्छे तरीके से एलाबोरेट कर पाओगे. A for about, H for historical social context, I for imagery, T for techniques, P for personal response, O for organization, E for emotions and M for message. अब मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एलाबोरेट कर देती हूँ कि असल में है क्या. मेकिंग श्योर अ हिट पोएम इज़ ओनली यूजफुल इफ़ यू नो व्हाट ईच वर्ड रेफर्स टू. अब आप अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे राइटर ने, ऑथर ने, पोइट ने जो भी वर्ड्स यूज़ किए हैं उनका मकसद क्या है, उनका मतलब क्या है, तभी आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाओगे ना क्रिटिकल अप्रिसिएशन के लिए. Below is a quick explanation of each one. अब जो हमने देखा कि अबाउट है, हिस्टोरिकल है, इमेजरी है, टेक्निक्स है, अब उसका मतलब यानी मतलब क्या है, उसका असल में क्या तरीका है जो आपको अपने जहन में रखना है. So about means what happens in the poem, what is it about, कि पोइम का मकसद क्या है और ये किसके बारे में है और इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है.
हिस्टोरिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या सोशल बैकग्राउंड है या क्या, यानी इसकी आप इसे कह सकते हो कि यानी इसकी थीम्स क्या हैं. Any important contextual information, example, it may be a war poem for World War One or two or related to any historical background. So imagery, what images are used and what effect do they have. तो इमेजरी में आप देखेंगे कि क्या इमेजेस उसने यूज़ किए हैं और क्या इफ़ेक्ट्स यूज़ किए हैं. टेक्निक्स में आप देखेंगे व्हाट पोएटिक टेक्निक्स आर यूज्ड, आई मीन टू से टेक्निक्स, डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, और क्या उसने उसमें जिस तरह इसकी बहुत ज़्यादा फिर लेंथी में वीडियो चली जाएगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ उसको ज़्यादा अच्छे से एलाबोरेट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स हम लोगों को फॉलो करनी है. पर्सनल रिस्पॉन्स में आएगा व्हाट आर योर पर्सनल फीलिंग अबाउट इट, कि आप क्या सोचते हो, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है. इस पैराग्राफ में आप लोग लिखोगे कि आप उसको किस तरह क्रिटिकली इवेल्यूएट करोगे. एक बात अपने जहन में रखिए, जब भी आप किसी पोइम को क्रिटिकली इवेल्यूएट करोगे तो आपको अपना एटीट्यूड बहुत माइल्ड रखना है. आपको ये शो नहीं करना कि आप पोइट या राइटर से कोई बहुत बड़े उससे हो गए और आप उसको बहुत ज़्यादा हार्श एंड क्वार वर्ड्स में क्रिटिसाइज़ करो. नहीं, आपको इस तरह बिल्कुल नहीं करना. आपको पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज़ करना है पोइम को. आपको कंपैरिजन रखना है गुड और बैड में, ठीक है. आपको निकालने हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो अच्छे हैं और कुछ ऐसे जो आपको बुरे लग रहे हैं. तो अगर तो बुरे उसमें हैं तो फिर आपको उनके दरमियान में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है और अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव वे में, माइल्ड वे में क्रिटिसाइज़ करना है. ऑर्गेनाइजेशन, हाउ हैज़ द पोइट स्ट्रक्चर द पोइम, कि पोइट ने उसको स्ट्रक्चर कैसे किया. इसमें आप राइम स्कीम भी लिख सकते हो और आप उसे बता सकते हो कि उसने पोइट उसको लेकर किस तरह चला, यानी स्टैंजा वाइज भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि कितने स्टैंजाज पे कंसिस्ट की है पोइट ने अपनी पोइम और क्या राइम स्कीम यूज़ की है, और उसका स्ट्रक्चर पूरा आप इसमें लिखोगे. इमोशंस, व्हाट इज़ द टोन और मूड, यानी इसमें एलिगरी है या ये सटायर है या ये आपका कॉमिक है या कुछ भी इस तरह, या ट्रेजेडी है. यानी इमोशंस उसमें क्या क्रिएट किए गए हैं, लव के हैं, पैशन के हैं, वॉर के हैं और पैथेटिक इमोशंस हैं. तो इसी तरह आपको बहुत अच्छे से उसे एलाबोरेट करना है. मैसेज में आ जाएगा व्हाट इज़ द थीम, व्हाट इज़ द पोइट्स मैसेज, और यानी पोइट आपको बताना क्या चाह रहा है, उसने क्या बैकग्राउंड यूज़ किया है, वो आपको मैसेज क्या देना चाह रहा है अपनी इस पोइट्री के थ्रू. क्या वो आपको कुछ यानी वो सोसाइटी की कुछ रिडिकुलस जो फुलीज़ हैं उनको आपके सामने लाना चाह रहा है, जैसे कि रेप ऑफ द लॉक में उसने 18th सेंचुरी पे सटायर किया, उससे रिलेटेड था वो. तो असल में जो पोइट है वो आपको बताना क्या चाह रहा है. अगर तो जॉन डन की आ जाती है तो उस पर यानी जो उसके इमोशंस होंगे वो लव से सिमुलेट करेंगे. तो ये जो चीज़ है ये बहुत काउंटेबल है. तो अब देखते हैं गाइस कि आपको अपना क्रिटिकल तो गाइस जब आपको अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को शुरू करना है तो आपको सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 2 से 3 बार आपको अपनी पोइम को पढ़ना है. सबसे पहले जब आप पोइम को पढ़ेंगे वो आप एक चाइल्डिश मैनर में पढ़ेंगे. दूसरी बार जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसे एज अ क्रिटिक पढ़ेंगे और आप उसको उसमें जितने भी वर्ड्स हैं जो आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं उनको अपने पेन से मार्क करेंगे या पेंसिल से पॉइंट आउट करते जाएंगे और उनको हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है. और फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने पेपर की बैक साइड पे जाके एक डायग्राम बनानी है. अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो आपको क्रोनोलॉजिकल मैनर में उसको लिखना है. जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये जो राइटर है उसका बैकग्राउंड बताएंगे, उसकी बायोग्राफी बताएंगे और साथ साथ उसका टाइम पीरियड बताएंगे कि आइदर ही वाज एलिजाबेथन और रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज से था या जो भी बाकी दूसरी एजेस हम लोगों के मॉडर्निज़म या जो भी आपको उसके हिसाब से लगेगा आप उसको उस तरह डिफ़ाइन करोगे. फिर आप उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड लिखोगे और साथ साथ उसको उसके जो टेक्निक्स उसने यूज़ किए, जो उसके कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आप उनको डिफ़ाइन करोगे जस्ट इन 3 to 4 लाइन्स, ओके, नॉट मोर देन दैट. और फिर आप क्या करोगे, थीम्स को
लिखोगे, सिंबल्स को देखोगे कि थीम्स क्या हैं, सिंबल्स क्या हैं, लिटरेरी डिवाइसेस और टेक्निक्स क्या हैं, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और क्या ये यानी आयरनी है, सटायर है, कॉमेडी है, कॉमिक ट्रेजेडी है या इसका यानी जो है इन अ सैड मैनर में लिखी गई है, या पोइट जो है उसके इमोशंस क्या हैं, पैशंस क्या हैं, और उसने यानी क्या इसको उसने पैथेटिक इमोशंस में तो नहीं लिखा। तो वो सब चीज़ों को आपको खुद को फील करके तो फिर लिखना है, ठीक है। फिर पैराफ्रेज द पोइम। पैराफ्रेजिंग इज़ पुटिंग समथिंग इन योर ओन वर्ड्स, यानी आपको समराइज़ करना है, आपको उस पूरी पोइट्री को समरी के तौर पे अपने जहन में रख लेना है। आपको जब भी आप उस पर्टिकुलर पोइम को पढ़ो तो आपको उसको विजुअलाइज करना है अपने जहन में कि कैसे, यानी अपने किरदारों को आपको सामने चलते फिरते देखना है, जैसे आपको ज्यूफ्री चौसर दिखाता है अपनी प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स में। आपको इस तरह अपने जहन में उसको डिफ़ाइन कर लेना है, और इस तरह आपको एक इमेज क्रिएट कर लेने हैं, जैसे कि आप जब उसे लिखोगे तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। और साथ साथ फिर आपको जहन में रखने हैं उसके थीम, सिम्बल्स और ऑल दैट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। आफ्टर रीडिंग द पोएम रीराइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो अपने ओन वर्ड्स में लिखिए उसको। मेक श्योर यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट द डिफ़िकल्ट वर्ड मीन्स। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड की समझ नहीं आ रही तो आप उससे पहली एक लाइन और उसके बाद वाली, या उससे पहली दो लाइन्स या उसके बाद वाली को दो दफ़ा दोबारा पढ़ें। उससे कम से कम आपको समझ आ जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है, और किस मकसद को लेकर जो पोइट है वो अपनी बात कहना आपको चाह रहा है या समझाना चाह रहा है, ठीक है। फिर आपको ये भी देखना है कि उसका जो राइम स्कीम है वो क्या है, उसके स्टेंजास कितने हैं, और हर स्टेंजा को आपको एलेबोरेट करते जाना है। आप इस तरह भी कर सकते हो उसको अगर तो छोटी पोइम है तो उसको आप यानी ऐसे ही डिफ़ाइन कर दो, इकट्ठा ही डिफ़ाइन कर दो। अगर थोड़ी सी लंबी है तो आप स्टेंजा वाइज उसको डिवाइड करके आप इस तरह भी लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेंजा में ये बात हुई है, सेकंड में ये हुई है, थर्ड में ये हुई है, ठीक है। और फिर लुक फॉर फिगरेटिव लैंग्वेज के उसने फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किए हैं। आइदर इट इज़ सिमिली और सिमिलीज़ हैं, या मेटाफोर्स हैं, या एलिट्रेशन है, या सिंबलिज्म है, या हाइपरबोल्स हैं, या इमेजरी है, ठीक है। इन सब को आपको गौर से ध्यान से इन पर अपनी नज़र डालनी है, और फिर इनको फिगर आउट करना है कि ये क्या, यानी किस पर्सपेक्टिव से और कौन सी स्पीच उसने यूज़ की है। टोन में देखें गाइस, जो टोन है उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या पोइट्री जो की गई है वो दुखी अंदाज में है, या यानी पोइट जो है वो बहुत एग्रेसिव है, या डिप्रेस्ड है, हैप्पी है, सैड है। तो ये जो टोन है वो आपको बता देगी कि आपको अपनी पोइट्री की क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी कैसे है, यानी आपको किस वे में लिखना है। एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जब भी आप क्रिटिकली इवेल्युएट करें तो बड़े माइल्ड मैनर में करें। आप उसको बहुत ज़्यादा हार्श एंड क्वार वर्ड्स ना यूज़ करें, पॉजिटिव वे में उसको लेकर चलें। अगर तो आप उसमें देख रहे हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ, तो आपको दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट से लेकर चलना है। आपको बिल्कुल एकदम नेगेटिव नहीं शो कर देना, ना ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको उसके वीक पॉइंट्स शेयर करने हैं, नहीं। आपको माइल्ड और पॉजिटिव वे में अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी बात ना कर दें जो कि आपके एग्जामिनर को इरिटेट करे, यानी आपको पोइट या ऑथर से ज़्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके काम बहुत बड़े थे और उन्होंने जो भी लिखा वो बहुत अहमियत का हामिल है। तो आपको इस चीज़ से दूर रहना है कि आपको क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब है कि आपको चुन चुन के उनमें गलतियाँ निकालनी हैं और फिर आपको पॉइंट आउट करना है। नहीं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट करनी है, बल्कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पोइम, ठीक है। ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है। और थीम्स जो हैं, आई थिंक थीम इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पोइम।
और इसी से आपको पता चलता है कि जो जो ऑथर है या पोइट है वो आपको बताना क्या चाह रहा है, वो उसमें मैसेज आपको क्या देना चाह रहा है। थीम, द मैसेज ऑफ द पोइम, व्हाट डज द ऑथर वांट्स अस टू लर्न, कि हमें वो बताना क्या चाह रहा है। व्हाट इज़ द पोइट ट्राइंग टू से अबाउट लाइफ, और जो पोइट है वो आपको लाइफ के बारे में क्या कन्वे करना चाह रहा है। और असल में जो थीम्स हैं, क्या वो वॉर से रिलेटेड हैं, क्या वो फैशन से रिलेटेड हैं, क्या वो कुछ ऐसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पेश कर रही हैं जिसमें पॉवर्टी, डिजीज़ और पैथेटिक इमोशंस यूज़ हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को अपने जहन में आपको रखना है। इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम लोग 3 या 4 इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें आपको थॉरली एलाबोरेट करूँगी कि कौन कौन सी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए। और यानी मास्टर्स लेवल पे आपको इसको बहुत ध्यान से एलाबोरेट करना है। बच्चे जो हैं अगर यानी एफ ए लेवल तक या मैट्रिक और एफ ए लेवल में आप थीम्स को, सिंबल्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को, इन तीनों पे सिर्फ बात चल सकती है। लेकिन जब मास्टर्स लेवल पे हम आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस को बहुत बारीक बीनी से देखना पड़ता है, उसको बहुत यानी आप उसे कह लें कि यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट राइटिंग द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में उसको एलाबोरेट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching guys, but please don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Birds in order to get more videos. Thank you guys. Take care. Allah Hafiz.